Today's topic is types of networks. A network may be a small group of interlinked computers to a chain of a few hundred computers of different types. For example, personal computers, mini computers, mainframe, etc. These computers may be localized or spread around the world. Thus, networks vary in terms of their size and complexity. Various types of networks are discussed below. Four types we will discuss: LAN, WAN, MAN, and PAN. PAN means at your home or office for 10 meters or less, all the things which we are connecting. So that is your PAN. LAN will be your different departments of your office or of your company, so that will be LAN. Then MAN will be in your city, and that is cable network, all these things. And WAN will be your internet or wide area railway, all these examples of WAN. So let us see how to do it. How you will, suppose a case study is given and you are asked which type of network you will use here: LAN, WAN, MAN, PAN. So you have to understand here that how much meters or distance it covers, as well as the other features also. So let us start. Personal area network, PAN. A personal area network is a computer network organized around an individual person. Personal area networks typically involves a mobile computer, a cell phone, and or a handheld computing device such as a PDA. You can use these networks to transfer files including email and calendar appointments, digital photos and music. तुम्हारे घर में तुम्हारा अगर वाईफाई है या फिर तुम वाईफाई से या फिर जो भी अलग ब्लूटूथ से जो भी कनेक्ट कर रहे हो डिवाइसेस, वो सारे किस में आएंगे? पैन में आएंगे. Personal area networks can be constructed with cables or be wireless. USB and FireWire technologies often link together a wired PAN, while wireless PANs typically use Bluetooth or sometimes infrared connections. Bluetooth PANs generally cover a range of less than 10 meters, about 30 feet. PANs can be viewed as a special type or subset of local area network LAN that supports one person instead of a group. वन पर्सन या फिर एक फैमिली ले सकते हो. ज़्यादातर हम पर्सनल एरिया नेटवर्किंग का मतलब है कि उस पर्सन के लिए, तो वो पर्सन अगर अपने ऑफिस में अपने मोबाइल को, कंप्यूटर को, प्रिंटर को, सबको कनेक्ट करके रखना चाह रहा है, तो वो अपना पैन वायर से या वायरलेस पैन यूज़ करेंगे. और घर में भी आजकल हम लोग पैन यूज़ करते हैं, जिसमें हम कभी कभी अपने सिबलिंग्स, भाई बहनों को दे देते हैं, शेयर कर देते हैं, या फिर एक ही वाईफाई कनेक्शन से हम अपने फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन सब लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो पैन में आएगा. या फिर वायर्ड भी आजकल हम लोग ब्रॉडबैंड भी यूज़ कर रहे हैं, वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब पैन में आएगा. नेक्स्ट, लैन. ये तुमको समझना पड़ेगा ताकि केस स्टडी में अगर वो कोई कहानी एक केस बना के दे दे, केस बेस्ड क्वेश्चन में, तो उसमें नीचे ऑप्शन रहता है लैन, वैन, मैन, पैन. तो तुमको समझना पड़ेगा कि ये पैन है कि लैन है. सपोज एक दिया है केस स्टडी में कि इन फैमिली ऑल द children as well as their parents are using the same broadband connection. So what type of network it is? LAN, WAN, MAN, PAN. So you will write there PAN. Next, local area network. Network device in a LAN, network devices are connected over a relatively short distance. They are generally privately owned networks within a single building or campus of up to a few kilometers in size. LANs can be small, linking as few as 3 computers, but often linked hundreds of computers used by thousands of people. This means that many users can share expensive devices such as laser printers as well as data on the LAN. जो हम लोग स्कूल में यूज़ करते हैं या ऑफिसेस, कंपनीज में, वो सारे LAN यूज़ करते हैं. स्कूल में सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है और एक ही ब्रॉडबैंड से सभी कनेक्टेड है, सारे डिवाइसेस. सपोज 200 डिवाइसेस कंप्यूटर्स हैं,
तो वो सारे एक ही ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड। Users can also use the LAN to communicate with each other by sending mails or engaging in chat sessions. Nowadays, we also use wireless LAN, which is based on wireless network covered in next chapter. One LAN can even be connected to other LANs over any distance via telephone lines and radio waves. However, there is also a limit on the number of computers that can be attached to a single LAN. The development of standard networking protocols and media has resulted in worldwide proliferation of LANs throughout business and educational organizations. जितने भी organizations है सब जगह हम लोग आजकल LAN से कनेक्ट करते हैं। जैसे स्कूल में एक से ज़्यादा ब्रॉडबैंड है, लेकिन वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जब दूसरे बिल्डिंग में हम भेज रहे हैं, हमारे यहाँ पे जैसे 4 बिल्डिंग है, तो दूसरे बिल्डिंग में अगर यहाँ का कनेक्शन नहीं जा पा रहा है ब्रॉडबैंड का, तो वहाँ के लिए हमने अलग से नेट ब्रॉडबैंड अलग से लिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पेपर में अगर आएगा कि एक डिपार्टमेंट है या 2 डिपार्टमेंट है, दोनों के बीच में इतने किलोमीटर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है और उसको हम जोड़ना चाहेंगे, तो उसमें तुम लैन लिखोगे। अब जो मैन है मेट्रोपॉलिटन, ये एक सिटी के लिए है। इसमें सपोज यहाँ पे दिया है 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर डायमीटर तक हम यूज़ करते हैं। तो जैसे सिटी केबल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ 50 किलोमीटर तक हम मैन यूज़ करेंगे। उसके बाद कभी कभी हम 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में भी वैन भी यूज़ करते हैं। जैसे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो हम सब लोग आजकल हम वाइड एरिया नेटवर्किंग यूज़ कर रहे हैं, वैन यूज़ कर रहे हैं। खाली स्कूल ऑफिसेस में एक ब्रॉडबैंड से जहाँ सब कनेक्टेड है वहाँ पे हम लैन, और घरों में हम या ऑफिस अपने खाली अपने काम के लिए हम पैन यूज़ कर रहे हैं। बस ये आजकल ज़्यादा उतना यूज़ होता नहीं है। सिटी केबल फिर भी यूज़ हो रहा है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, this is basically a bigger version of LAN and normally uses similar technology. It might cover few buildings in a city and might either be private or public. This is a network which spans a physical area in the range of 5 to 50 kilometers diameter that is larger than a LAN but smaller than a WAN. MANs are usually characterized by very high speed connections using optical fibers. ये याद रखना कि इसमें ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है, और हम लोग ने जो अभी तक पढ़ा लैन, उसमें कोएक्शियल केबल यूज होता है, इथरनेट यूज होता है। क्योंकि ये आता है क्वेश्चन पेपर में कि हमने एक लैन कनेक्शन किया, कौन सा केबल, तो वहाँ पे ज़्यादातर हम कोएक्शियल इथरनेट यूज करते हैं, और इसमें 50 किलोमीटर्स तक है, इसीलिए हम ऑप्टिकल फाइबर यूज करेंगे। और अदर डिजिटल मीडिया एंड प्रोवाइड्स अपलिंक सर्विसेज टू वाइड एरिया नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट। For example, in a city, a MAN, which can support both data and voice, might even be related to local cable television network. ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो लोकल केबल टेलीविजन नेटवर्क, ये इसका MAN का बेस्ट एग्जाम्पल। The MAN, its communications link and equipment are generally owned by either a consortium of users or by a single network provider who sells the service to the users. Since MAN adopts technologies from both LAN and WAN to serve its purpose, it is also frequently used to provide a shared connection to other networks using a link to a WAN. जो आजकल इंटरनेट भी प्रोवाइडर्स, बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स लोकली जो दे रहे हैं, वो सारे मैन यूज़ कर रहे हैं। और हम लोग जो मोबाइल और इसमें सब यूज़ कर रहे हैं, चाहे जियो हो चाहे कोई भी कंपनीज का, हम जो ये सब हम लोग वैन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क वैन, एज द टर्म इम्प्लाइज, वैन स्पैन्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया often a country or a continent and uses various commercial and private communication lines to connect computers. Typically, a WAN combines multiple LANs that are geographically separated. This is accomplished by connecting the different LANs using services such as dedicated leased phone lines, dial-up phone lines, satellite links, high-speed fiber optic cables, and data packet carrier services. Wide area networking can be as simple as a modem and remote access server for employees to dial into, or it can be as complex as hundreds of branch offices globally linked
using special routing protocols and filters to minimize the expense of sending data sent over vast distance. मीन्स अगर इसमें तुमको बोला जाएगा कि रेलवे का पूरा कनेक्शन जो है वो भी वैन है, रेलवे का, बैंक का, उन लोगों का मीन्स प्राइवेट जो भी उन लोगों का सिक्योर्ड वाला है वो सब भी वैन है, हम जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ये भी वैन है, हम जो क्लासेस ले रहे हैं ये भी वैन है, ठीक है. Let us take an example of your local telephone exchange, which is a part of WAN. The computers at each telephone exchange connect to other exchanges to allow you to talk to people all over the world. The internet is the largest WAN spanning the entire earth. तो WAN का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो इंटरनेट है, लेकिन सारे जो स्टेट्स, सारे कंट्रीज को जो जोड़ रहा है, इवन जो हमारा पोस्ट ऑफिस का पूरा ऑनलाइन हो चुका है, गवर्नमेंट के सारे ऑनलाइन हो चुके हैं, ये सारे वैन से ही हम लोग जुड़े हुए हैं. आज की डेट में वैन मैक्सिमम यूज़ हो रहा है. वैन, हाँ, हर घर में आजकल पैन भी यूज़ होने लगा है और हर ऑफिस में लैन भी यूज़ हो रहा है. और जो तुमको लोकल अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर या तो टेलीफोन इसमें दे, या तो टेलीविज़न का जो कनेक्शन सिटी केबल्स दे रहे हैं, या फिर जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स दे रहे हैं, वो मैन का एग्जाम्पल है. तो दिस इज योर नेटवर्क. अब इसमें डिफरेंस बिटवीन लैन, वैन, मैन, पैन आता है. इसमें डिफरेंस के लिए तुम एक काम कर सकते हो. इसमें नेट में मैंने अभी सेव कहाँ किया था देखना पड़ेगा. डिफरेंस बिटवीन लैन, मैन, पैन, वैन. सारे डिफरेंसेस जो हैं ये अगर तुम एक जगह पे अगर टैबुलर फॉर्म में देखना चाहते हो, इसको कॉपी में लिख लेना, क्योंकि डिफरेंसेस जो हैं वो तो आते ही हैं. तो इसमें हम देखते हैं, अगर इसमें कुछ टैबुलर फॉर्म में नहीं है, मेरे पास है, मैं बाद में शेयर कर दूंगी टैबुलर वाला, ठीक है. तो ये तुम्हारा जो दिया है, हाँ, एक पेज में अगर डायग्राम बनाने बोलेंगे तो एक घर बना देना, उसके अंदर या फिर ऑफिस बना देना, उसके अंदर पूरे कनेक्ट करके मोबाइल को, प्रिंटर, मोबाइल, लैपटॉप, उसमें लिख देना पैन. उसके बाद एक ऑफिस में सबको कनेक्ट करके ये लैन 1, लैन 2, लैन 3. उसके बाद फिर उनको आप एक सिटी में सबको कनेक्ट करके मैन कर देना, और सारे लैंड्स को एक साथ कंट्री वाइज कनेक्ट करके वैन कर देना, ठीक है. तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा तुम लोगों के लिए. तो ये तुम्हारा हो गया टाइप्स ऑफ नेटवर्क. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे